Hello friends, welcome back to anthropology classes. We are discussing anthropology. In last video, we discussed some topics like socio-economic characteristics of Indian tribes. We discussed social aspects, economic aspects. Okay, we discuss also another topic, geographical distribution of tribes, how tribes are located in different parts of the region. We also discuss the languages that are spoken by the tribes living in different geographical region of the country. Now continuing with with the same topic, if you remember, I told you that I will discuss biogenetic variability in the next section, in the next topic, in the next video. So today we will discuss the same topic, that is biogenetic variability in Indian tribal groups. What is biogenetic variability? Biogenetic variability in Indian tribes. You know what is tribe? I have discussed with you group of people that live in a particular geographical area that have common topography, they have distinct language, they have distinct culture, they have unique religious system and political system. They are endogamous. So there are many characteristics of tribal population. So what is a tribe? I have discussed with all of you that definition of tribe, what are the characteristics of tribe. Okay, it is a group, of course it is a group of people living in isolated uh, forest. They live in isolated lands. Okay, they are isolated from the mainstream societies. They have, they are simpler societies. They maybe had, some had like tribal chief. Their tribes, maybe they are food hunting and food gathering tribes. Okay, there are n number of tribes that I have discussed with you, like Mundas, Hos, Santhals, Morwans, okay, Kukis, Khasis, Nagas, Irulas, Bills, okay, then Ladakhis, Zhuangs, Irulas. There are n number of tribes that are in India. They have different socio-economic characteristics. Now, biogenetic variability is very important section from examination point of view. Okay. So, what is biogenetic variability? Means we try to understand the variation regarding genes. So, what all types of genes are present in the tribes that are located in central Himalayas, northwestern Himalayas, northeastern Himalayas, central Indian region, south Indian region, western India region. So, how there is a variability among them in terms of psychological, physiological characteristics, in terms of genetic characteristics. Okay, so
what type of stature do they possess, what head form do they have, stature do they possess, what type of nasal index do they have, okay, what type of HB variants do they possess, and what blood group do they possess. So in this we discuss biogenetic variability, we discuss physiological features like stature, like stature, okay, like nasal index, नोज कैसी है उसके बारे में पढ़ते हैं, देन फेशियल इंडेक्स, फेस फॉर्म कैसी है, फेस उनका कैसा है, ब्रॉड है, नैरो है, लॉन्ग है, नेचर कैसी है, नैरो नोज है, ठीक है, मीडियम नोज है, ओके, ब्रॉड नोज है, ओके, नेचर इंडेक्स, फेशियल इंडेक्स, देन हम और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ते हैं, हम इनमें देखते हैं कि ब्लड ग्रुप को स्टडी करते हैं, किस तरह का ब्लड ग्रुप, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो किस तरह का ब्लड ग्रुप किस ट्राइबल ग्रुप्स में पाया जाता है, ओके, हम जीन्स, हम एक्सपी वेरिएंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह का एचपी वेरिएंट्स इन ट्राइब्स में हमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमें देखने को मिलता है, ओके, हम जीन्स टाइप्स को हम इनमें स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ओके, बड़े सारे फैक्टर्स बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी में हम करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम बात करें, अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल ट्रेट्स, हम क्या क्या कवर किया हमने, हम देखिए फिजिकल ट्रेट्स कि उनका फिजिकल ट्रेट्स कैसा है, मैंने बताया आपको फिजिकल ट्रेट्स कैसा है, ठीक है, ब्लड ग्रुप कैसा है, ये हम डिस्कस करते हैं, ब्लड ग्रुप को डिस्कस करते हैं, फिजिकल ट्रेट्स को डिस्कस करते हैं, ओके, तो हम उनका एचबी वेरिएंट्स को हम डिस्कस करते हैं, तो हमें टॉपिक को सबसे पहले समझना होगा कि बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या होती है, मींस कैसे उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं, कहीं पे शॉर्ट स्ट्रेचर की ट्राइब्स मिलती हैं, कहीं पे मीडियम स्ट्रेचर की ट्राइब्स मिलती हैं, कहीं पे ब्रॉड नोज वाले ट्राइब्स मिलते हैं, कहीं पे नैरो नोज वाले ट्राइब्स मिलते हैं, किसी में एक ग्रुप पाया जाता है, एक ट्राइबल ग्रुप में दूसरा ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है जो ट्राइब्स होते हैं वो उनकी डिफरेंट इकोनॉमिक अडेप्टेशन होती है, डिफरेंट एनवायरमेंटल अडेप्टेशन की वजह से, क्योंकि वो डिफरेंट एनवायरमेंट्स में रहते हैं, आइलैंड्स में रहते हैं, उनकी फिजिकल फीचर्स डिफरेंट होंगे, ट्राइब्स फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी, है ना, तो आइसोलेशन में रहते हैं, है ना, तो उनके बीच डिफरेंट ज्योग्राफिकल बैरियर्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी बैरियर्स इसमें हो सकता है, आइलैंड में रहते हैं, जैसे माउंटेन्स के ऊपर रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, लोअर एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, तो इन सब ये जो कारण हम लोग अक्सर पढ़ते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन पढ़ते हैं ना, तो नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है, नेचुरल सिलेक्शन आप इंडिविजुअल में वेरिएशन आते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है, डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है, ओके, और उसके अंदर मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। जब हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो आप देखोगे एनवायरमेंट अडेप्टेबिलिटी
को ध्यान में रखते हुए उनमें डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स डेवलप होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं नमाज में हमने जिराफ की एग्जांपल पढ़ी थी कि जिराफ का नेक क्यों लॉन्ग नेक क्यों लॉन्ग नेक वाले जिराफ क्यों हमें मिले। पहले तो शॉर्ट नेक्स के जिराफ हुआ करते थे। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ। जब लीव्स जो थे वो ट्रीज के ऊपर जो कम हाइट पे जो लीव्स थे जब वो खत्म हो गए तो जिराफ को लीव्स जब को पाने के लिए उसको अपने नेक को स्ट्रेच करना पड़ता था। तो नेक को स्ट्रेच करता था तो उसकी वजह से क्या हुआ? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या हुआ? उसकी नेक जो है वो लंबी हो गई। लॉन्ग नेक वाले जिराफ जो है वो पैदा होने लगे। ठीक है, तो ये है नेचुरल सिलेक्शन। तो इसकी वजह से वैसे ही हमें स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। वैसे ही हमने देखो ट्राइब्स कौन कौन से ध्यान में रखने हैं। हमने ट्राइब्स रखने हैं सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। अब बेसिकली बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ओके, पहले हम सेंट्रल इंडिया की बात करें। सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स की बात करें। ठीक है, देखो हिमालयन ट्राइब्स की बात करें, अंडमान ट्राइब्स की बात करें। अब जो हिमालयन जो ट्राइब्स है कौन है? हिमालयन ट्राइब्स। हिमालयन ट्राइब कहाँ रहते हैं? ये पहाड़ी एरिया में रहते हैं। ठीक है, ठंड होती है वहां पे। तो अब ठंड की वजह से इनका जो इनके नोज जो होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रॉड नोज होते हैं, नैरो नोज होते हैं। इनमें नोज आपको कौन सी फॉर्म मिलेगी? नैरो नोज। ठीक है, तो इनको हमें बोलते हैं लेप्टोरिन नोज। इनको हम बोलते हैं लेप्टोरिन नोज। ठीक है, तो हिमालयन ट्राइब्स में हिमालयन ट्राइब्स में आपको कौन से नोज मिलेंगे? क्योंकि वहां पे ठंडा क्लाइमेट होता है, तो ठंडा क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट होने की वजह से तो वहां के जो ट्राइब्स हैं वहां के कोल्ड क्लाइमेट में अडेप्ट अपने आप को करने के लिए उनके नोज जो है वो नैरो हो जाते हैं। तो क्या होता है जब कूल एयर जब नैरो नोज से वो इनहेल करते हैं तो जो नोज के अंदर एयर जो है वो वार्म हो जाती है। क्या होती है? वार्म हो जाती है। ओके, तो हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, हम सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स की बात करें। सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स मैंने बताया है सेंट्रल इंडिया में आपको कौन कौन से ट्राइब्स आपको मिलते हैं। उनकी हमने सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी, हमने लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी, किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, है ना। सेंट्रल इंडियन के ट्राइब्स आप किस ये आपको जहाँ के जो ट्राइब्स हैं ये आपको ऑस्ट्रोएशियाटिक लैंग्वेज फैमिली में जो लैंग्वेजेस आती हैं सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स उन लैंग्वेजेस को स्पीक करते हैं। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। तो सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स में आपको ब्रॉड नोज देखने को मिलेंगे, ब्रॉड नोज देखने को मिलेंगे, ब्रॉड नोज या फिर मीडियम नोज देखने को मिलेंगे। और सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स की बात करें, जैसे आप अंडमानीज ट्राइब्स जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में रहते हैं, मैंने बताया था आपको। ठीक है, इनकी लैंग्वेज फैमिली कौन सी थी? हम साथ साथ में लिंकिंग कर रहे हैं टॉपिक्स की। इनकी लैंग्वेज फैमिली कौन थी मैंने बताया दिया कमेंट सेक्शन में। इनकी लैंग्वेज फैमिली थी नॉर्थ अंडमानीज लैंग्वेज फैमिली। ठीक है, तो इनके नोज भी कैसे होते हैं? ब्रॉड नोज होते हैं। अब ब्रॉड नोज की खासियत क्या होती है? गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो जब गर्म हवा जो है वो इनहेल करते हैं ये तो नोज ब्रॉड होने की वजह से एयर जो है वो कूल डाउन हो जाती है। एयर क्या हो जाती है? कूल डाउन हो जाती है और हम ब्रीथिंग करते हैं कंपैरेटिवली कूल एयर की हम ब्रीथिंग करते हैं। तो ये सारा जो है आपको रटना नहीं है, आपको चीजों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब आपको होगी, मैं बार बार आपको इस पे जोर देता हूँ कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट है। तो आपने ध्यान रखना है हिमालयन ट्राइब्स है तो वहां पे कोल्ड क्लाइमेट है
तो कोल्ड क्लाइमेट है तो उनको नैरो नोज वहां पे आपको देखने को मिलता है। अब सेंट्रल इंडिया ट्राइब्स जो है वहां पे क्लाइमेट वार्म होता है, वहां पे जो है वेदर जो है वो वार्म होता है, तो वहां पे आपको ब्रॉड नोज वाले आपको जो वहां की जो ट्राइब्स है उनकी नोज जो है वो ब्रॉड देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप्स मैंने बताया था आपको, आपको याद होगा कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था मॉर्फोलॉजिकल बेसिस, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन। हमने मॉर्फोलॉजी के बेसिस के ऊपर और जेनेटिक बेसिस के ऊपर हमने रेशियल क्लासिफिकेशन की थी। तो ये टॉपिक जो है हम जो वेरिएबिलिटी हमें देखने को मिलती है इंडियन ट्राइब्स में उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप में मैं आपको बता दूं जो बी ब्लड ग्रुप है ना वो आपको इंडियन पॉपुलेशन में इसकी प्रोपोर्शनेट, बी ब्लड ग्रुप की प्रोपोर्शनेट हाई होती है। बी ब्लड ग्रुप की प्रोपोर्शनेट जो है वो हाई होती है इंडियन पॉपुलेशन में। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, और मैं आपको बता दूं जो ओ है, ओ आपको अंडमानीज जो ट्राइब्स है यहाँ पे आपको ओ ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, अंडमानीज में आपको ए और ग्रुप्स देखने को मिलेगा, लेकिन जो ए है वो लेस है, ए का प्रोपोर्शनेट जो है वो वेरी लेस है। आपको मैं ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपको चीजें आपको अभी मैं वन बाय वन एक्सप्लेन भी करूंगा इन चीजों को। अभी मैं आपको ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूं कि कहां पे आपको नोज ब्रॉड मिलेगा, कहां पे आपको नोज नैरो मिलेगा, मिजोरी नोज कहां मिलेगा। इसको हम ब्रॉड नोज को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड नोज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लैटिनिक नोज। ठीक है, प्लैटिनिक नोज हम इसको बोलते हैं। तो आपको आपको ब्रॉडली आपको याद रखना है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वहां पे आपको जो ब्लड ग्रुप है वो कॉमन जो दिखेगा वो ब्लड बी ब्लड ग्रुप आपको कॉमन दिखेगा। लेकिन जो हमारी अंडमान आइलैंड में जो पॉपुलेशन रहती है, ट्राइब्स रहती है, वहां पे आपको ब्लड ग्रुप कौन सा देखने को मिलेगा, वहां पे आपको ब्लड ग्रुप ओ देखने को मिलेगा। ओके, ये मैं आपको मोटे मोटे तौर पे आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं आगे। हम बात करते हैं चलिए हम इसको अब डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। देखिए, अब सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स की मैं बात करूं तो हमने कौन कौन सी एग्जांपल करी थी हमने सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स की। सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स में हमने वो मुंडास है, संथल्स हैं, गौंड्स हैं, तो ये सारे। ठीक है, तो इनका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ट्राइब्स है, हिमालयन ट्राइब्स है, यहाँ पे आपको शॉर्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको मीडियम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स है, मीडियम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, और हम क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स हैं। ठीक है, फिर नॉर्थ वेस्टर्न के ट्राइब्स हैं, मिडिल हिमालयन के ट्राइब्स हैं। ठीक है, सेंट्रल इंडियन के ट्राइब्स हैं। ठीक है तो हम बात करते हैं तो ये सारे उनकी जो स्ट्रक्चर है वो मीडियम देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर सबका मीडियम है। बस अंडमानी ट्राइब्स का जो स्ट्रक्चर है वहां पे आपको शॉर्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये आपको मैं ऐसे इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको क्लास में ही आपको चीजें याद हो जाए, क्लास में ही आपकी जो है इसकी मेमोरी जो है वो टॉपिक की मेमोरी जो है वो बन जाएगी आपके माइंड में। तो मैंने बताया आपको नॉर्मली जो जितने भी ट्राइब्स हैं वो सारे होते हैं मीडियम स्टेचर के, एक्सेप्ट हम बात करते हैं जिनकी अंडमान ट्राइब्स जो है जो कैसे होते हैं, ये शॉर्ट स्टेचर के होते हैं।
तो हमने नेशनल इंडेक्स हमने डिस्कस कर दिया, हमने ब्लड ग्रुप डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो हमने ये स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स है, जो सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स हैं, तो इनमें आपको वो जो है मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा। सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स में आपको वो ग्रुप जो है वो मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स की, सेंट्रल हिमालयन ट्राइब्स की, फिर हम उसके बाद बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन ट्राइब्स की, ठीक है, और हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो मोस्टली आपको जो ओ ग्रुप है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो आपको यहाँ पे अंडमानीज में आपको सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स जो है वहां पे आपको ओ ग्रुप देखने को मिलेगा, ओ ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स में आपको ओ ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है। और ओ ग्रुप जो है, जो सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स है वहां पे देखने को मिलेगा, अंडमानीज ट्राइब्स हैं वो देखने को मिलेगा। अब नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स में भी आपको जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स में आपको कॉमन देखो बी भी मिलेगा आपको, और ओ ग्रुप भी जो है वो मोर कॉमन मिलेगा। तो नॉर्थ इंडियन इस ट्राइब्स में बी के साथ आपको ओ भी मिलेगा, ठीक है। और कहाँ पे आपको जो सेंट्रल इंडिया में ट्राइब्स जो है, सिर्फ आपको जो अंडमानीज है ना, यहाँ पे आपको जो है ओ ग्रुप आपको की डोमिनेंस मिलेगी, ठीक है। तो बाकी अगर हम देखें, बाकी जितने भी हम ट्राइब्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बी ग्रुप भी आपको देखने को मिलता है, हिमालय में आपको बी ग्रुप भी देखने को मिलेगा, और आपको ओ ग्रुप भी देखने को मिलेगा, ओ ब्लड ग्रुप भी देखने को मिलेगा, बी ग्रुप और ओ ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको बी ग्रुप भी देखने को मिलेगा, ओ ग्रुप भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो अंडमानीज है ग्रुप में आपको ओ ग्रुप जो है वो वहां पे देखने को मिलेगा, और सेंट्रल इंडियन ट्राइब में भी आपको बी ग्रुप और ओ ग्रुप जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ क्या रहे हैं, हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कि किस तरह से ब्लड ग्रुप की वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, अब नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस है, सेंट्रल हिमालयस है, नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स है, सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स है, ठीक है, और लक्षद्वीप के वो ट्राइब्स हैं, अंडमान के ट्राइब्स हैं। ओके, तो ये हम डिस्कस करेंगे, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं RH पॉजिटिव की, तो RH पॉजिटिव जो है आपको मोस्टली आपको RH पॉजिटिव आपको हर ट्राइब्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको RH नेगेटिव आपको कहाँ पे, जो नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स है ना, जो नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स है, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स है, यहाँ पे बी ग्रुप भी देखने को मिलेगा, ओ ग्रुप भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे RH पॉजिटिव RH नेगेटिव जहां पे आपको मिलते हैं देखने को नॉर्थ ईस्ट में। बाकी आपको हिमालयन ट्राइब्स में आपको RH पॉजिटिव मिलेगा, RH पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स में आपको RH पॉजिटिव मिलेगा, तो आपको अंडमानीज ट्राइब्स में आपको RH पॉजिटिव मिलेगा, आपको जो है नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स है वहां पे आपको RH नेगेटिव देखने को मिलेगा, वहां पे आपको O ग्रुप भी कॉमन मिलेगा। अंडमानीज में आपको नो ग्रुप जो है वो ग्रुप जो है वो आपको कॉमन देखने को मिलेगा। ओके, तो स्ट्रक्चर की बात कर ली, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब सेंट्रल इंडिया में, अब सेंट्रल इंडिया में मैंने बताया आपको इनके नोज कैसे होते हैं, ब्रॉड नोज होते हैं, ठीक है। अब इनकी बात करें फेस की, ठीक है, या फिर हम हेड की बात करें, हम आपको बता दूं, आपको इसमें होता है मीजोसेफेलिक होते हैं, है ना, और ब्राचिसेफेलिक्स होते हैं। ओके, मीजोसेफेलिक, ब्राचिसेफेलिक्स होते हैं, ठीक है, डोलिगोसेफेलिक्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो देखिए
एक हो गया मेसोसेफेलिक, एक हो गया ब्रैचियोसेफेलिक, एक हो गया मेसोसेफेलिक, एक होता है ब्रैचियोसेफेलिक, ठीक है, एक होता है मेसोसेफेलिक, एक होता है ब्रैचियोसेफेलिक, ठीक है, एक होता है डोलिगोसेफेलिक। एक होता है डोलिगोसेफेलिक, ठीक है। अब हम बात करें मेसोसेफेलिक मींस मीडियम, ब्रैचियोसेफेलिक मींस ब्रॉड एंड डोलिगोसेफेलिक मींस नैरो। ओके, तो आपको मैं बता दूं थोड़ा सा हेड फॉर्म, फेशियल फॉर्म और माउथ फॉर्म की बात मैं कर रहा था आपके सामने, इसको थोड़ा सा मैं और आपके सामने समक्ष जो है वो इलेबोरेट कर दूं। देखो, एक जो है मैं आपको बता दूं, जो सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स है, ठीक है, अब मैं बता दूं आपको फेसेस जो है, ठीक है, कहीं पे आपको लॉन्ग फेसेस मिलेंगे, कहीं पे आपको ब्रॉड फेसेस मिलेंगे, ठीक है, कहीं पे आपको मीडियम फेसेस मिलेंगे, लॉन्ग फेसेस, मीडियम फेसेस और ब्रॉड फेसेस। तो चार तरह के फेस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मीडियम फेसेस आपको, आप देखो, जो लॉन्ग फेसेस है ना, ब्रॉड फेसेस हो गए, और लॉन्ग फेसेस, ब्रॉड फेसेस और मीडियम फेसेस, लॉन्ग, ब्रॉड एंड मीडियम। हम बात करते हैं लॉन्गर फेसेस की। तो लॉन्गर फेसेस आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? जो सेंट्रल हिमालयन या फिर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन है, वहां पे आपको लॉन्ग फेसेस देखने को मिलेंगे। जो सेंट्रल हिमालयन है या नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन है, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन है या फिर जो सेंट्रल हिमालयास के जो ट्राइब्स हैं, तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे? फेसेस जो है आपको लॉन्ग फेसेस मिलेंगे, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न हो गए कौन से? लद्दाखी हो गए, ठीक है। और सेंट्रल हिमालयास में जो सेंट्रल हिमालयास के जो ट्राइब है, वहां पे आपको कैसे फेस मिलेंगे? नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास में, ठीक है। सेंट्रल हिमालयास में आगे जैसे किन्नौरी है, गढ़वाल है, कुमाऊं है, ठीक है, लद्दाखी है, ठीक है। तो वहां पे आपको किस तरह के फेस मिलेंगे? वहां पे आपको लॉन्ग फेसेस देखने को मिलेंगे। वहां पे किस तरह के फेस देखने को मिलेंगे? लॉन्ग फेसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल इंडियन और नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स की। सेंट्रल इंडियन और नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स, जो सेंट्रल इंडियन है, जहां पे आपको मीडियम, जहां पे आपको मीडियम फेसेस मिलेंगे सेंट्रल इंडियन में, और नॉर्थ ईस्टर्न में आपको मीडियम फेस मिलेंगे। आपने इस टॉपिक को रटना नहीं है, आपने इसको रिलेट करके समझने की कोशिश करनी है कि ब्रॉड फेसेस अच्छा कहां मिलेंगे? अच्छा वहां वहां मिलेंगे। लॉन्ग फेसेस कहां मिलेंगे? अच्छा हमें लॉन्ग फेसेस जो है हमें मिल जाएंगे सेंट्रल हिमालयन ट्राइब्स में और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन ट्राइब्स में। मीडियम जो है फेसेस कहां मिलेंगे? वो हमें नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स में मिल जाएंगे, सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स में मिल जाएंगे मीडियम फेसेस। तो हमने लॉन्ग फेसेस की बात कर ली और हमने बात कर ली मीडियम फेसेस की। अब हम बात करते हैं ब्रॉड फेसेस की। अब जो ब्रॉड फेसेस है वो आपको कहाँ मिलेंगे? ब्रॉड फेसेस की अगर हम बात करें तो ब्रॉड फेसेस आपको मिल जाएंगे
अंडरलाइनिंग स्पेस। अंडरलाइनिंग में आपको कौन से फेसेस मिलेंगे? ब्रॉड नोज के साथ ब्रॉड फेस मिलेंगे। ठीक है, मींस आपको ब्रैचियोसेफेलिक मिल जाएंगे। ठीक है, आपको मीडियम वाले जो होंगे वो मेसोसेफेलिक होंगे और लंबे वाले जो कार्डियोसेफेलिक होंगे। और लंबे फेस वाले आपको हिमालयन रीजन में, सेंट्रल हिमालयन रीजन हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन हो गया, और जो सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स है वहां पे आपको मीडियम हेड आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आपको जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स है वहां पे आपको मीडियम फेसेस मिल जाएंगे। लेकिन आपको जो ब्रॉड फेसेस है वो आपको कहाँ मिलेंगे? ब्रॉड फेसेस के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे? अंडरलाइनिंग ट्राइब में जाना पड़ेगा। ठीक है, हमने लॉन्ग की बात कर ली, हमने ब्रॉड फेस की बात कर ली, हमने नैरो फेस की बात कर ली, हमने मेसोसेफेलिक की बात कर ली, हमने ब्रैचियोसेफेलिक की बात कर ली, हमने डोलिकोसेफेलिक की बात कर ली। तो कौन सा फेस कहाँ पे मिलेगा? अगर मैं आपको पूछूं कि ब्रॉड फेस वाले ट्राइब्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे हमें मिलेंगे अंडमान की जो ट्राइब्स हैं वो ब्रॉड फेसेस वाले ट्राइब्स होते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि लॉन्ग फेसेस वाले ट्राइब्स कहाँ मिलेंगे, तो आप बोलोगे हमें जो सेंट्रल हिमालयस के जो ट्राइब्स हैं या फिर नॉर्थ वेस्ट हिमालयस के जो ट्राइब है वो ट्राइब्स जो है वो लॉन्ग फेसेस वाले ट्राइब होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं मीडियम फेसेस के ट्राइब्स कहाँ मिलेंगे, तो आप बोलोगे सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट हिमालयस में जो हमें फेसेस मिलेंगे वो कौन से फेसेस मिलेंगे? यस, एग्जैक्टली। ओके, तो हमने फेसेस की बात कर ली, हमने नोज की बात कर ली, है ना? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हेड फॉर्म, नोज फॉर्म और फेस फॉर्म की बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे एचबी वेरिएंट्स की। ठीक है, एचबी वेरिएंट्स की बात करें तो आपको हिमालयास में और आइलैंड्स में, हिमालयास में और आइलैंड्स में आपको लो मिलेगा। हिमालयास में और आइलैंड्स में आपको एचबी वेरिएंट की फ्रीक्वेंसी लो मिलेगी। आपको एचबी वेरिएंट्स की फ्रीक्वेंसी आपको हिमालयास में जो है वो आपको बड़ी ही लो मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं एचबीएस एक बेसिकली क्या है? हेमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स है। तो एचबीएस आपको कहां पे मिलेगा? एचबीएस आपको सेंट्रल इंडियन की जो ट्राइब्स है वहां पे आपको एचबीएस वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स में। सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स में आपको एचबीएस वेरिएंट देखने को मिलेगा। और जो एचबीई वेरिएंट है वो आपको नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स में एचबीई वेरिएंट आपको कहां पे मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट ट्राइब में आपको मिलेगा। एचबीई वेरिएंट आपको कहां पे मिलेगा? एचबीएस आपको मिलेगा सेंट्रल इंडिया में। और एचबीई जो हेमोग्लोबिन डिसऑर्डर है ये बेसिकली डिसऑर्डर्स है, तो ये आपको मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया बेसिकली हॉटस्पॉट है, हेमोग्लोबिन वेरिएंट लिखा और एचबी हेमोग्लोबिन वेरिएंट एस का जो है हॉटस्पॉट है वो सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स है। ओके, तो हमने ब्लड ग्रुप की बात कर ली, हमने ब्लड ग्रुप की को डिस्कस किया, हमने नेशन इंडेक्स को डिस्कस किया, फेशियल इंडेक्स को डिस्कस किया, स्टेचर को डिस्कस किया, है ना? ब्लड ग्रुप को डिस्कस किया, एचबी वेरिएंट्स को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे जीन टाइप्स। ओके, तो जीन टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो जीन टाइप्स की बात अगर हम करें, ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो
mDNA, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, हम इसको डिनोट करते हैं mtDNA के साथ, mtDNA। तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिट करते हैं कहां से, मदर से। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो हम उसको इनहेरिट करते हैं कहां से, हम मदर से इनहेरिट करते हैं, ठीक है। तो इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को भी क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, इसको फैमिलीज में डिवाइड किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं हैप्लोग्रुप्स। हैप्लोग्रुप्स में हम इसमें हम देखने को मिलता है। देखिए हम जो बेसिकली जो हैप्लोग्रुप एम है, ठीक है, हैप्लोग्रुप एम है जो वो हमें कॉमन मिलता है अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो अब जो ए ग्रुप है, ए ग्रुप भी आपको कॉमन मिलेगा, इंडिया में भी मिलेगा और आपको कहां पे मिलेगा, आपको यूरोप में मिलेगा और वेस्ट एशिया में मिलेगा, यूरोप और वेस्ट एशिया में आपको मिलेगा, ठीक है। तो यूरोप में भी मिलेगा और वेस्ट एशिया में भी मिलेगा, और ये एम जो है ये आपको थ्रू इंडिया में मिलेगा, ए इंडिया में मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद देखो जो हिमालयंस है, ठीक है, जो हिमालयंस है देखो एक एम ग्रुप है, एक आर ग्रुप है और एक है ए ग्रुप, ठीक है। तो आर ग्रुप ये बेसिकली आर जो है हमें मिलेगा कहां से, हमें वेस्ट एशिया में मिलेगा और हमें मिलेगा जो है यूरोप में मिलेगा, ठीक है। और ए ग्रुप जो है वो कहां पे मिलेगा, वो आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट ए ग्रुप आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेगा, आर ग्रुप आप इंडिया में भी मिलेगा, यूरोप में मिलेगा, वेस्ट एशिया में मिलेगा, ईस्ट एशिया में एक ग्रुप मिलेगा, एम जो है वो आपको थ्रू इंडिया में मिलेगा। तो तीन जो वेरिएंट्स हैं एम आर ए उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो हम बात करेंगे, ठीक है, एम आर ए मैटरनल डीएनए की बात अगर हम करते हैं तो आपको जो है आपको सेंट्रल इंडिया में आपको ए वाले भी मिलेंगे, आर वाले भी मिलेंगे, ए वाले भी मिलेंगे, ठीक है। तो इनको आपने क्या करना है, इनको आपने डिस्कस कर लेना है, इनको आपने समझ लेना है, ठीक है। कौन सी जो है हमने आई थिंक ऑलमोस्ट इस टॉपिक्स पे हमने डिटेल में हमने डिस्कस की है चीजें, हमने हम ट्राइब्स को स्टडी कर रहे हैं, है ना। हम ट्राइब्स की हमने सोशल लाइफ के बारे में स्टडी किया, हमने इनकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में स्टडी किया, ये क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, ठीक है, ये इनकी फैमिली सिस्टम को स्टडी किया, मैरिज सिस्टम को स्टडी किया, इनके रिलीजन को स्टडी किया, पॉलिटिकल लाइफ को स्टडी किया, इनकी लैंग्वेजेस को हमने स्टडी किया, है ना। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी एलपी विद्यार्थी की, हमने एलपी विद्यार्थी और बीके राय की क्लासिफिकेशन पढ़ी, है ना। वेरियस हमने लिंग्विस्टिक की स्टडी की, हमने जो ट्राइब्स को ज्योग्राफिकल रीजन में उनको डिवाइड करने की कोशिश की। उसके बाद हमने बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो भी हमने ट्राइब्स की स्टडी की, ठीक है। तो किस तरह से जो ट्राइब्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो की मैंने आपको जो है ठीक है, आपको आप जो जितने भी सारे जो ट्राइब्स हैं मैंने आपको की टेकअवेज भी आपको बता दिए कि कौन सा ट्राइब में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा ब्लड ग्रुप मिलता है, एपी वेरिएंट्स कौन सा है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, पेशेंट इंडेक्स कौन सा है। तो ये चीजों को हमने डिस्कस किया, ऑन द होल हमने इस टॉपिक को समझने की कोशिश की है। तो हम ट्राइब्स को हमने समझा, हमने ट्राइब्स की इकोनॉमिक लाइफ को समझा, हमने ट्राइब की सोशल लाइफ को हमने समझा,
तो हमने ट्राइब्स को हर एस्पेक्ट से हमने ट्राइब्स को समझने की कोशिश की है। आपको कम से कम आपके पास 100 ट्राइब्स की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। इंडिया के और वर्ल्ड के 100 ट्राइब्स की आपकी लिस्ट होनी चाहिए, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सोशियो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओके, उनकी बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या है ना। अब इनकी हम पॉलिटिकल लाइफ जो है ट्राइब्स की, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हम जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है इनका, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, हम इसको आगे भी डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू रखेंगे इस टॉपिक को। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन ट्राइब्स। ओके, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन ट्राइब्स को हम डिस्कस करते हैं। So let us discuss political organization of Indian tribes. तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हम करें, ठीक है, तो हम इनको भी हम जो हमने क्लासिफिकेशन की थी ट्राइब्स की, उसके बेसिस पे ही हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ट्राइब्स के बारे में मैंने बताया आपको, तो ये बेसिकली इनका जो स्टेटलेस सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, तो इनमें भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनका कल्चर के मुताबिक, इनके वे ऑफ लिविंग के मुताबिक। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स की, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स जो है, मैं आपको बता दूं, तो वहां पे भी आपको क्या होता है, तो इनमें क्या होता है, कलेक्टिव ओनरशिप होती है। क्या होता है, लैंड जो है इनकी कॉमन लैंड होती है ना। तो लोग जो हैं वो फ्री होते हैं लैंड को कल्टीवेशन के लिए। तो यहाँ पे किसी एक शख्स की, ट्राइब की, पर्सन की लैंड नहीं होती, यहाँ पे कॉमन ओनरशिप होती है लैंड। जो असम के जो ट्राइब्स हैं, तो वहां पे आपको इग्लिटेरियनिज्म देखने को, इग्लिटेरियन सोसाइटी होती है बेसिकली ट्राइब्स की। ओके, तो अब बेसिकली ट्राइब्स है क्या, मैंने बताया था कि ट्राइब्स क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ क्लैंस है। तो वहां पे आपको एक्सोगेमस क्लैन मिलेंगे, डिफरेंट क्लैंस मिलेंगे असम में। तो क्लैंस का क्या होता है, ट्राइब्स को क्लैंस में डिवाइड होता है। तो क्लैन बेसिकली क्या है, ट्राइब एक एंडोगेमस ग्रुप है, वो अपने ट्राइब में ही शादी करेंगे, लेकिन जो ट्राइब के अंदर क्लैंस होते हैं वो एक्सोगेमस ग्रुप है। तो अगर किसी को शादी करनी है तो अपने क्लैन में शादी नहीं करेगा, वो अपने क्लैन से बाहर शादी करेगा। ओके, तो हम बात करें जो ये जो ट्राइब्स है असम की, वहां पे ऐसा है। अगर आप बात करें गारोस की, जो खासिस की, जो खासिस हैं मेघालयास के, ठीक है, तो उनको जो होते हैं, वो उनका एक चीफ होता है जिसको हम बोलते हैं सीम, SIEM। तो सीम होता है उनका, ठीक है। तो जो बेसिकली एल्डेस्ट सिस्टर का जो एल्डेस्ट सन होगा, उसको बनाएंगे सीन, वो हेड होगा, ठीक है, चीफ होगा, वो ट्राइबल चीफ होगा, ठीक है।
तो वहां पे खासिस में मैं आपको बता दूं, एक तो वहां पे मैट्रिलिनियल आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वहां पे आपको मैट्रिलिनियल सोसाइटीज देखने को मिलती हैं। तो खासिस में आपको बता दूं, जो खासिस में क्या होता है कि वो उनके जो जितना भी ट्राइब है उनकी 25 इंडिपेंडेंट में डिवाइड है, वो खासी स्टेट्स में डिवाइड है, 25 सेक्शंस में डिवाइड है। तो हर एक स्टेट का एक हेड होता है जिसको हम बोलते हैं सीम, और सीम क्या है, एक हेरिडिटरी पोजीशन है, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि जो सबसे बड़ी बहन होती है उसका बड़ा बेटा जो होता है वो क्या बनता है, वो सीम बनता है, वो चीफ बनता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि बेसिकली जो डिसीजन जो होते हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं, जो अडल्ट होते हैं वहां पे खासिस में वो बैठ के कलेक्टिवली डिस्कस करते हैं और एक कॉमन डिसीजन को लेते हैं। तो खासिस में आपको सीम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद गारोस है, गारो का क्या होता है, गारोस में कुछ चीफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, विलेज काउंसिल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ट्राइब्स भी देखा जाए तो वो भी डेमोक्रेटिक होती हैं। तो आपको गारोस में जैसे मैंने बताया जो असम के जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो ट्राइब्स हैं असम की, जो मेघालय की ट्राइब है खासिस, उसके बाद जो गारोस है, गारोस का बेसिकली कोई चीफ नहीं होता है, ठीक है, गारोस का बेसिकली कोई चीफ नहीं होता है। तो बेसिकली वहाँ पे विलेज के काउंसिल्स होते हैं, तो विलेज काउंसिल्स में एल्डर जो मेंबर्स होते हैं वो विलेज काउंसिल्स बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अफेयर्स जो है वहाँ पे जो कामकाज जो है विलेज काउंसिल्स क्या करते हैं, ओके। तो नागा ट्राइब्स जो है उनका भी चीफ होता है, नागा ट्राइब्स का भी चीफ होता है। देखो, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स की। हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न, तो यहाँ पे आपको असम की ट्राइब्स हैं, यहाँ पे आपको खासिस देखने को मिलती हैं, ठीक है, असम की ट्राइब्स हैं, खासिस देखने को मिलती हैं, और गारोस हैं, ठीक है, गारो है। उसके बाद और अदर ट्राइब्स हैं, असम ट्राइब है, खासो खासिस है, गारो है, ठीक है, नागास है, ठीक है। तो ये ट्राइब्स बेसिकली इनके चीफ्स होते हैं, है ना, चीफ्स होते हैं। तो चीफ बेसिकली क्या करते हैं, वो कामकाज देखते हैं, ट्राइब्स का कामकाज देखते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ट्राइब्स का कामकाज देखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जो चीफ्स हैं वो क्या करते हैं, ट्राइब्स का कामकाज देखते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं, जो गारो है उनमें कोई चीफ नहीं होता, जो खासी है उनमें जो हेड होता है चीफ उसको बोलते हैं सीम, तो सबका चीफ होता है तो उनको वो रेगुलेट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स की, तो सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो हेड होता है, तो हेड होता है, तो वहां पे हेड के साथ साथ कुछ सीनियर एल्डर मेंबर्स होते हैं जो कि मिल के डिसीजन लेते हैं और ओवरसी करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, ओके। तो जैसे संतल्स हैं, मेलर्स हैं, तो वहां पे जो विलेज हेडमैन होता है उसको हम बोलते हैं मांझी, मांझी बोलते हैं, मांझी होता है विलेज हेडमैन। तो संतल्स होता है, मेलर्स होता है, तो वो क्या करते हैं, उनको हम बोलते हैं, हेडमैन को मांझी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके पास अथॉरिटी होती है
ओके, और वो चलाता है ट्राइब्स को। उसके बाद साउथ इंडियन ट्राइब्स हैं। तो ट्राइब्स क्या होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे इनके ग्रुप्स होते हैं, है ना। तो ये विलेज के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं या फिर डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं, बैंड्स में रहते हैं। साउथ इंडियन के ट्राइब्स में आपको क्या मिलेगा, आपको कोई चीफ नहीं मिलेगा, हेडमैन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो एल्डर्स होगा वो डिसीजन लेते हैं और उनका डिसीजन बाइंडिंग होता है। ओके, तो हम अब देखा जाए तो एक ट्राइब्स जो है वो स्टेट सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो स्टेट सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं ट्राइब्स। तो ट्राइब्स जब आपको स्टेट सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं तो ट्राइब्स का क्या होता है, वो जो है उनमें जो है वो चेंजेस आ रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इंडिया में, तो उसके अंदर ट्राइब्स जो है वो स्टेट की फॉर्म की तरफ जाते हैं, स्टेट की तरफ उनका झुकाव जो है वो उनका देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, मैं आपको बता दूं। हम ट्राइब्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, ट्राइब्स की जब हम बात करते हैं तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स डिस्कस कर रहे हैं, आपको सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स डिस्कस कर रहे हैं, आपको साउथ इंडियन ट्राइब्स डिस्कस कर रहे हैं। तो उनका आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर रहा है, कैसे वो रहते हैं, कहाँ वो रहते हैं, क्या खाते हैं, पीते क्या है, कैसी उनकी लाइफ है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, उनका उनका देखा जाए तो चीफ होता है। तो चीफ उसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कास्ट में सिंह बोलते हैं, ठीक है। तो जो विलेज हेडमैन होता है ट्राइब्स का, तो उसकी एक काउंसिल होती है जहाँ पे ट्राइब्स के जो एल्डर मेंबर्स होते हैं, वो एल्डर्स जो होते हैं ट्राइब्स के, वो विलेज हेड के मेंबर्स होते हैं। तो वो बैठ के कलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं। कोई भी उनको डिसीजन लेना है तो बैठ के वो कलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं और डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो साउथ इंडियन ट्राइब जो है वो बेसिकली डिस्पर्स्ड है, उनके छोटे छोटे ग्रुप्स हैं और वो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, या फिर वो कहाँ रह रहे हैं, या फिर वो आउटस्कर्ट्स जो होती हैं विलेज में वहां पे रह रहे हैं। तो अब वहां पे कोई फॉर्मली जो है वो चीफ नहीं होता है, बट जनरली होता क्या है, विलेज का एक हेडमैन होता है जो सीनियर एल्डर मेंबर होता है, वो रन करता है, ट्राइब्स के अफेयर्स रन करता है, डिसीजन मेकिंग लेता है, इश्यूज जो होते हैं, ब्रॉडर इश्यूज जो होते हैं उनको रिजॉल्व करता है। कोई कंफ्लिक्ट हो जाए ट्राइब्स की आपस में तो उन कंफ्लिक्ट्स को रेजोल्यूशन करता है। तो हमने देखा कि पॉलिटिकल लाइफ, हमने पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी इंडियन ट्राइब्स की, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन ट्राइब्स, वो हमने डिस्कस करी, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने इंडियन ट्राइब्स की हमने डिस्कस करी, हमने उनकी इकोनॉमिक लाइफ डिस्कस करी, कैसे वो एज ए कोऑपरेटिव यूनिट की तरह काम करते हैं, कैसे उनमें रेसिप्रोसिटी होती है, एक्सचेंज होता है। मैंने आपको डायग्राम बना के दी थी सुबह में, ठीक है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में डायग्राम बना के दी थी, किस तरह से जो कोटास है, टोटास है, कुरुम्बास है, गॉन्ड्स है, उनकी आपस में इंटरेक्शन, पॉट्स एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं, बुफेलो मिल्क दे रहा है कोटास, नाइफ्स प्रोवाइड की जा रही है, ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्लोथ्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता है, ठीक है। तो इनकी सिंपल फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, एज के बेसिस पे ये काम को क्लासिफाई करते हैं, एज के बेसिस पे ये काम को क्लासिफाई करते हैं, ये सेक्स के बेसिस पे ये वर्क को डिवाइड करते हैं, ठीक है। इनका जो टेक्नोलॉजी जो होती है वो सिंपल फॉर्म होती है टेक्नोलॉजी। इनमें ये इनका जो प्लाउ होता है वो सिंपल वुड का बना होता है,
तो वो ज्यादा डीप तक अलाउ नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक तो एंडोगैमस ग्रुप होता है, ये इग्लिटेरियन इन नेचर होता है, एक इनका कोऑपरेटिव यूनिट की तरह काम करते हैं, सिंपल पॉलिटिकल डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल सिस्टम होता है, डिस्टिंक्ट रिलीजियस सिस्टम होता है, डिस्टिंक्ट एक एंडोगैमस ग्रुप होता है ट्राइब, ये कोऑपरेटिव यूनिट की तरह काम करते हैं, ठीक है। सिंपल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल लाइफ होती है, सिंपल फॉर्म ऑफ उनका जो सिस्टम है वो चलता है, हर चीज जो है वो सिंपल होती है, ठीक है, इक्विटेरियन इन नेचर होती है। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फैमिली मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो बायोजेनेटिक डाइवर्सिटी की बात कर लें, आपको ब्रॉड नोज वाले आपको मिलेंगे, सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स जो है वो ब्रॉड नोज वाले हैं, जैसे अंडमान ट्राइब्स हैं वो ब्रॉड नोज वाले हैं, जो हिमालयन ट्राइब्स हैं वो नैरो नोज वाले हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स जो हैं वो भी नैरो नोज वाले, सेंट्रल हिमालयन ट्राइब्स, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, ये सारे ट्राइब जो है वो नैरो नोज वाले, है ना। तो आप देखोगे ब्लड ग्रुप बी जो है वो प्रीडोमिनेटली थ्रू इंडिया में आपको देखने को मिलता है। अंडमान जो आइलैंडर्स है, अंडमान जो ट्राइबल्स है वहाँ पे ओ ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में आपको बी ग्रुप भी देखने को मिलेगा, आपको ओ ग्रुप भी देखने को मिलेगा। ए ग्रुप जो है वो रेयर है इंडिया, बड़े ही कम पॉपुलेशन होती है जहाँ पे आपको बी ए ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। RH नेगेटिव भी इंडिया में रेयर है, RH पॉजिटिव जो है वो इंडिया में प्रीडोमिनेटली है। तो स्टेचर आपको जितने भी ट्राइब्स हैं वो मीडियम स्टेचर के हैं, ठीक है। अंडमान जो ट्राइब्स हैं वो शॉर्ट स्टेचर के ट्राइब्स हैं, ओके। तो हमने देखा एम जो HbS वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल इंडियन ट्राइब में। HbE वेरिएंट जो है, जो हेमोग्लोबिन डिसऑर्डर है, वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स में, ठीक है। इसके अलावा आपको जो M टाइप है वो थ्रू आउट इंडिया में, आपको इसके बाद जो R टाइप है वो आपको वेस्ट एशिया में भी, इंडिया में मिलेगा और वेस्टर्न कंट्रीज में भी मिलेगा, यूरोप में भी मिलेगा। और जो ए टाइप है वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब में मिलेगा या फिर ईस्टर्न कंट्रीज में मिलेगा। तो हमने बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी हमने डिस्कस की, हमने फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की, हमने स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, हमने फेस फॉर्म, हेड फॉर्म, नोज फॉर्म हमने डिस्कस किया, हमने ब्लड ग्रुप्स को डिस्कस किया, हमने हेमोग्लोबिन वेरिएंट्स को डिस्कस किया, ओके। हमने जीन टाइप को डिस्कस किया, एम टाइप, आर टाइप, ए टाइप, कहाँ में जीन्स ये मिलते हैं वो हमने देखा। तो हमने वेरिएबिलिटी हमने देखी है, तो ये वेरिएबिलिटी आने के बहुत सारे कारण हैं। जीन म्यूटेशन से आ सकती है वेरिएबिलिटी, माइग्रेशन से आ सकती है वेरिएबिलिटी, नेचुरल सिलेक्शन से आ सकती है वेरिएबिलिटी, हाइब्रिडाइजेशन से आ सकती है, इनब्रीडिंग से आपको जेनेटिक जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमने ट्राइब्स को हमने समझा है, अंडरस्टैंड किया है, क्रिटिकली एनालाइज किया है ट्राइब्स को, चाहे वो इंडियन के ट्राइब्स की हम ज्यादा हम स्टडी कर रहे हैं, हम ट्राइबल इंडिया को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, एक होमवर्क देता हूँ, आपने कोई मेन 50 इंडियन ट्राइब्स की आप लिस्ट बनाएंगे और उनकी आप 100 वर्ड्स में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखेंगे, उनका इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, उनकी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में जैसे मैंने बताया कि उनका विलेज हेड होता है, विलेज चीफ होता है, कहीं पे चीफ नहीं होता है, कहीं पे उनका जो क्लान जो है एक्सोगैमस ग्रुप है, जो ट्राइब है वो एंडोगैमस ग्रुप है, ये मैंने बताया आपको।
तो आपने इन चीजों को रटना नहीं है, आपने चीजों को समझने की कोशिश करनी है, लिंक करने की कोशिश करनी है। फैक्टर्स जब आप होलिस्टिक वे में इसको स्टडी करेंगे तब आपको ये टॉपिक्स जो है वो अच्छे से आपको दिमाग में आपके बैठ जाएगा और आपको आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आपको तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाओगे और आपको बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आपको उसमें मिलने से आपको जो है वो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हम बात करते हैं डिफरेंट, हमने बात करी डिफरेंट सोशियो कैरेक्टरिस्टिक्स की, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी की हमने डिस्कस की है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ट्राइब्स की वो हमने डिस्कस की है। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं गाइस। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को स्टार्टिंग से लेके एंड में बने रहिए। और आपको क्या करना है, आपको मेरी वीडियोस के ऊपर फीडबैक देनी है ताकि मैं अपने लेक्चर्स को और इसमें इम्प्रूवमेंट करूँ, अपने कंटेंट को और मैं एनरिच करूँ। ठीक है, आपने जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो मेरे बोलने का तरीका है, उसको मैं और अच्छा बनाऊँ। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरूर मेरे वीडियोस के ऊपर कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें, नेगेटिव कमेंट करें। ठीक है, तो दोनों साइड से मेरे को बेनिफिट होने वाला है। ओके गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस एंड हैव ए नाइस डे।